Hello students, I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I am discuss about the thermistors. In my previous lecture we are starting the fifth unit, transducers and your strain gauge. Now I am coming to continue the next transducer, that is the thermistor. This is also a passive transducer and that is very important transducer for temperature measurement. And we are using for in the domestic purpose mostly, for industrial purpose also, but we are using here is the domestic purpose. You can see lot of time, but you not observe that where is using the thermistors. So, this is the temperature measuring device, temperature transducer you can say. Today we discuss all about this. So, general concept of thermistor, what is thermistors, types of thermistors and advantage and working of thermistors we can discuss in this lecture detail. First we come to the thermistor. What is thermistors? What is the purpose of thermistors? What is the symbol of thermistors and the shapes of the thermistors? In the slides we you are seeing here, thermistor is a as per the name, thermistor is a resistance thermometer. Thermistor, thermal plus resistor. So, this is known as a resistance thermometer which are measuring the temperature. This is the temperature transducer, temperature measuring transducer. The combination of thermal plus resistor, this is known as thermistors. Okay? And it is made for the metallic oxide and press the and design the shape. Lot of shapes are available for the thermistors. As per application we can say, as per application we can design the shape of the thermistors. Okay. So, we are generally we are when we design the shape, this shape, bead shapes, cylindrical shapes as per, and you can say another word is the, this is the semiconductor type of device, because we are using as a in between higher resistance to lower resistance. So, this is using the typical thermistor achieve the high precise with the limited temperature range. They are using the for low temperature measurement. Other devices as RTD and thermocouple we will discuss in next lecture. So, we are this is the symbol. It is mentioning the two type of signal. One is using the US and Japan, and in India also we are using the Europe. So, these are the symbol for the thermistors. At the time of the designing, हम जब design करते हैं तो यहाँ पे use करते हैं. This is the different type of shapes for the thermistors. Sometime you can see in the books types of the thermistor, there is also the according to the shape. But actual में here you are seeing in this slide, this is the shape of the thermistors. According to application, these are the few shapes. You can change or you can add on according to your requirement. We can use the first is the bead type, the very small size, this is the typical diameter is 1 mm, this is the disc type, rod type, okay? This is a chip type and this is a wafer type. These designs, these shapes you can say these are the shapes. So, these shapes are designed according to your applications, as per applications. We can use the shapes. This is the simple and the types of thermistors as you have seen here in the slides. We have the two types, NTC thermistors and PDC thermistors. We are using the negative temperature coefficient and the positive temperature coefficient. तो as per name, जैसा आप नाम देख रहे हैं कि जब resistance हमारा temperature के साथ increase करेगा, that is known as positive temperature coefficient thermistors. And जब हमारा temperature resistance के साथ decrease करेगा, that is known as negative temperature coefficient thermistors. Again I am saying why are using as per requirement. In my first lecture, when I starting my lecture in instrumentation and measurement, I am totally clearly explain कि हमारी सारी application based instrument होते हैं. एक इंस्ट्रूमेंट कहीं के लिए है तो वो जरूरी नहीं कि वो वहीं के लिए हो. वी कैन यूज़ एज पर एप्लीकेशन. कॉन्सेप्ट सेम होता है लेकिन उसका डिज़ाइन पैरामीटर और उसका जो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं.
तो जहाँ पे हमें अगर हम जनरल बात करेंगे, इसलिए मैंने देखिए पहले एनटीसी को लिया है, क्योंकि हमारा जो जनरल एज अ सेंसर यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है, एनटीसी होता है। पीटीसी भी यूज़ होता है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। आप शेप भी देख रहे हैं, तो जैसा इसका नाम है कि वी कैन यूजिंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है। तो वे इंक्रीजिंग टेम्परेचर एज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो थर्मल सेमीकंडक्टिंग सेरेमिक, हम जो इसमें जनरली वी आर यूजिंग द ऑक्साइड सेरेमिक्स, तो हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जो यहाँ पे हम वी कैन प्रेस इट, हम मटेरियल लेते हैं, आप डिज़ाइन भी देख रहे हैं, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। तो ये हमारी क्या है सब, ये एक्चुअल में दिस इज़ द टिप ऑफ द सेंसर्स, ठीक है, दिस इज द डायोड टाइप ऑफ सेंसर। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो अगर आप भी आगे देखेंगे तो यू कैन यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट शेप्स। तो जनरली एज अ सेंसर वी कैन कंसिडर व्हेन वी कंसिडर द एनटीसी। अदर पर्पज़ के लिए लूज, बाकी तो बहुत सी एप्लीकेशन है, यू कैन सी इट। तो वी आर यूजिंग द इन सम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड द रेजिस्टेंस वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस एज द RT, ठीक है। RT0 एक्सप्रेशन BN 1/T 1/T0। तो ये क्या है, ये हमारा वेयर इज द RT इज रेजिस्टेंस, RT इज द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, T एंड T0 रिस्पेक्टिवली। तो BN इज द मटेरियल कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं तो अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो वो जो हमारा कांस्टेंट मटेरियल कांस्टेंट उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्योंकि वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है, विच आर डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहले ही आपसे कहता है कि हमारा एक तरह से सेमीकंडक्टर है, एज अ कंडक्टर, एज अ इंसुलेटर वी कैन यूज़ इट। तो ये डिपेंड करता है जैसी हमारी ज़रूरत है। दिस इज़ अ सिंपल, हमने एक छोटा सा लिया है कि हमारा किस तरह से रेजिस्टेंस के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। जनरली है वी कैन मेजर डायरेक्ट, दीज आर द वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट। हमने आप देख रहे हैं देयर इज़ द 2 टर्मिनल्स, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ठीक है, 2 लीड्स हैं, यू कैन से द 2 लीड्स। तो 2 लीड्स पे हमें मेज़र करना है, वी कैन यूज़ डायरेक्ट मेजर। लगाना किधर है, इस साइड से, जो हमारा बीड्स हैं उस साइड में हम लगाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करा। दिस इज़ अ पेन, आई वांट टू मेजर दिस टेम्परेचर, तो we can use the put here the thermistors or any sensors, any type of measurement temperature sensor, तो we using the leads। तो वो leads हम कैसे measure करेंगे, we are using the measuring instrument, we are using the meter और we are using the multimeters। तो ये हमारी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरह यू कैन सी हियर, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं पीटीसी के, आप देख रहे हैं। तो एनटीसी के, सॉरी पीटीसी भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। तो आप देखें शेप्स ऐसा वी कैन यूज़ फॉर एप्लीकेशन। तो हम जहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से हम जैसी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से हम यहाँ पे एनटीसी लगाते हैं। ऐसे ही हमारा देखिए, आप पीटीसी में भी हम शेप चेंज कर दिया है। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे एज़ पर एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। अभी जब आगे और डिस्कस करेंगे 2 पैरामीटर देखिएगा, एक यहाँ पे ये चेंज है, आपके जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले दिखा दें, ये हमारा एनटीसी का है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा पीटीसी का, ठीक है। आप डिस्कस एक्सपेरिमेंट शो दैट इन द वर्किंग, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, मटेरियल विद द पॉजिटिव टेम्परेचर कैन बी यूज एक्चुअली कांस्टेंट टेम्परेचर सेंसर। जहाँ पे हमारे से एक टेम्परेचर है, वी कैन मेजर फिक्स टेम्परेचर, देन यूजिंग द पीटीसी। व्हेन यूजिंग द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वी आर यूजिंग द एनटीसी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था वी आर भाई ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं जो हम फिक्स करके रख दें, बहुत रेयर मिलता, कहीं कहीं भी ज़रूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा एप्लीकेशन है देयर इज़ द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर वेरिएशन को तो मेज़र ही कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द थर्मिस्टर। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में कहा था कि वी आर यूजिंग एनटीसी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एज अ सेंसर इज एनटीसी। बट यहाँ पे जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, या कि नहीं भाई एक बार हमने फिक्स कर दिया कि हाँ भाई इसी टेम्परेचर पे काम होना है, देन यू कैन यूज़ पीटीसी ब्लाइंडली। तो वी आर यूजिंग द सेम, वही हमारा RT0 एक्सपेरिमेंट BP इज इक्वल T/T0। तो आप यहाँ पे क्या होगा, BP इज द मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। आप देख रहे हैं दिस इज द BP इज द मटेरियल कांस्टेंट। द पीटीसी इफेक्ट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द precipitates बिटवीन द ग्रेन बाउंड्रीज एंड चेंज सिग्निफिकेंटली विद द क्यों ये क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वी आर यूजिंग द टेम्परेचर के साथ हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दिस अ प्रॉपर्टी they were mentioning is a precipitate between grain boundaries and the change significantly with the type of concentration and centering conditioned impurities, recently silicon wafers. This is the construction part. So we can using the electron scattering and due to the impurities then, so क्योंकि this is the by default is the semiconductor, so you can see the this is the PDC.
तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि दिस जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है वो चेंज है इसमें। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और हम कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे हमारा थोड़ा एक फिक्स रेंज होती है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स। दो तरह के होते हैं, पीटीसी और एनटीसी। मैक्सिमम यूज जो होता है एनटीसी, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वी कैन यूज़ द पीटीसी आल्सो। तो अब आप देख रहे हैं थर्मिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, आज के डेट में वी आर यूजिंग द सेवरल डिफरेंट थर्मिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा यूज़ है जो hermetically सील्ड फ्लेक्सिबल, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, बोल्ट और वाशर थर्मिस्टर्स एंड सरफेस माउंटेड। देखिए एप्लीकेशन, जहाँ आप डिज़ाइन भी देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक होता है कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिज़ाइन कैसी कहाँ, जहाँ पे हमें मेज़र करना है। दूसरा रेंज, एक रेंज भी पैरामीटर होती है, किस रेंज के लिए, वैसे भी थर्मिस्टर बहुत रेंज के लिए नहीं रहता, लेकिन आपको वहाँ पे सेट करना है कि कैसे काम करेगा, वो हम कंसीडर करते हैं। इसलिए मैं आपको देखा 3 टाइप के हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो होता है HSTH, दैट इज़ द hermetical सील्ड फ्लेक्सिबल थर्मिस्टर। तो इसकी रेंज हमारी, किसकी रेंज दे रहे हैं हम, ये जो रेंज हमने लिखी है ये किसकी है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी है, हमने इस रेजिस्टेंस के बीच में हमारा मेज़र करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब बोल्ट एंड वॉशर थर्मिस्टर, बोल्ट और वॉशर थर्मिस्टर टाइप डिज़ाइन फॉर द रिस्पॉन्स हैज़ रफली एनवायरनमेंट है, यू कैन जस्ट सी जस्ट दिस नॉट नॉट सेइंग जस्ट लाइक अ नट एंड बोल्ट एंड पुट ए हेयर। अगर हमें यहाँ पे लगाना है, अगर मेजरमेंट करना है, यू हैव पुट हेयर, जस्ट एक हमने नट बोल्ट लगा दिया। तो ईजीएस्ट, बहुत ही जनरल पर्पस वी आर यूजिंग दिस, बट दिस इज थर्मिस्टर, this is a sensor. Surface mounted thermistor, surface mounted thermistor have an adhesive material bottom of their sensor that can resist any type of surface. They are NTC chip thermistor. अब चिप में लगाना है, अब एग्जांपल्स देंगे आप तो समझेंगे कि कितना ज़्यादा इसका यूज़ है एवरीवेयर। थर्मिस्टर्स आर, और मैंने पहले ही बोला था इंडस्ट्री में तो यूज़ होते ही होते हैं, डोमेस्टिक जितना भी हमारा चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, मैक्सिमम वी आर यूजिंग द थर्मिस्टर। हाँ, शेप अलग होगा, डिज़ाइन अलग होगा, टाइप अलग होगा बहुत जगह, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो एनटीसी यूज़ होता है। तो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी द HSTH, आपको एक उसमें वायर की तरह लग रहा है, दिस इज़ द बोल्ट टाइप। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, बोल्ट लिखा ही है, इसका शेप के हिसाब से ही है। और दिस इज़ योर सरफेस माउंटेड, किसी सरफेस पे लगाना है, इसी सरफेस पे लगाना है मुझे, यहाँ पे लगाना है, तो वी कैन यूज़ द, यहाँ पे हम बोल्ट टाइप नहीं लगा सकते, this is the, so we can put here, just put here this surface. So we are using the, this is the surface type thermistor as per requirement. Now coming to the main point, this is the working of thermistor. जैसे मैं बार बार कह ही रही हूँ कि the working principle of thermistor is that resistance is dependent on its temperature. resistance हमारा depend करता है temperature पे। thermistor is a temperature measuring sensor or you can say the device. तो जब टेम्परेचर हमारा होता है, और इसको सिंपल हम ये भी नहीं कि बहुत स्पेशल सर्किट चाहिए इसको मेजरमेंट करने के लिए, वी कैन यूज जस्ट ओम मीटर और वी कैन यूज जस्ट मल्टीमीटर। आप मल्टीमीटर लेंगे और उसको तुरंत ही यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो टेम्परेचर विद इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, दे कैन बी मेजिंग द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस, वी कैन ड्राइव द टेम्परेचर। आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर। तो वी हैव द टेम्परेचर रेजिस्टेंस नॉन लीनियर, टिपिकल थर्मल ग्राफ इज सोन। ये नॉन लीनियर ही आपका है, नॉर्मल लिया है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। वी हैड थर्मिस्टर विद द अबव टेम्परेचर ग्राफ, यू कुड सिंपली लाइन अप द रेजिस्टेंस मेजर बाय द ओम मीटर। बहुत ही सिंपल डिवाइस है, कुछ हमें नहीं चाहिए। वी कैन यूजिंग द ओम मीटर या मल्टीमीटर या एनी अदर डिवाइस। आपने थर्मिस्टर लिया, उसको चेक किया। जनरली देखिए ये हमारा जो होते हैं, जो सेंसर्स होते हैं वो डिवाइस में माउंटेड होते हैं। हम जनरली ये नहीं चेक करते कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। एट द टाइम व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर, वी कैन जस्ट इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर और वी कैन यूजिंग द दैट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। ये प्रॉब्लम उस समय आती है जब वो चीज़ जो डिवाइस है लगी वो ख़राब है कि नहीं ख़राब है, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उस समय हमें मेन ये चीज़ देखना होता है कि फिर हम उसको कैलिब्रेशन भी होता है, लेकिन अभी कैलिब्रेशन आप करने जाएंगे, निकालेंगे। हम इंस्टेंट चेक करना चाह रहे हैं, जनरली यू कैन सू द टेम्परेचर नहीं करता, दे आर मेंशन द एरर, या ओवर रेंज दिखाएगा या अंडर रेंज दिखाएगा, उसके अलावा भी हम करते हैं। दिस इज़ द बहुत सिंपल वर्किंग है इसमें। थर्मिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हटके है कि आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग से क्या लेना, मैन्युफैक्चरिंग ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सेंसर्स बनाते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाते हैं, एक सेंसर बनाया जाए, दिस इज़ अ पेन, यू कैन यूज़ द पेन, हर में एक टिप होती है, पाइप रिफिल होता है, कहीं आपका इनबिल्ट होता है, कहीं आप उसको हटा सकते हैं, कहीं रिफिलिंग कर सकते हैं, कहीं आप उसको यूज़ एंड थ्रू बना सकते हैं। बट सेंसर में ऐसा नहीं है, होता है सेंसर भी होते हैं जो वन टाइम यूज़ करते हैं, उसे यूज़ एंड थ्रू वन टाइम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमें ऐसा जब भी कोई चीज़ डिवाइस, सपोज जस्ट वी आर यूजिंग द, यू हैव यूजिंग द मोबाइल फ़ोन दे यूजिंग द थर्मिस्टर, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आपके लिए थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो क्या आपका थर्मिस्टर ख़राब होगा तो मोबाइल फ़ोन फेंक देंगे? नहीं, यू कैन चेंज द थर्मिस्टर। और पहली बात तो ये सेंसर्स जब बनाए जाते हैं और इनबिल्ट किए जाते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ये आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, थर्मिस्टर नहीं ख़राब होगा, जनरली तो ये केस आती है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा है, ये अभी हम आपके फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में, आई एम डिस्कसिंग अबाउट हियर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर को जब हम बनाते हैं, कोई भी हमारी आज की डेट में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो वो बहुत ही, एक तो साइज़ उसका बहुत कम होता है, लेकिन जितना वो आपको साइज़ छोटा दिख रहा है उतनी मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए मैंने इस पॉइंट को उठाया है कि हम यहाँ पे अलग अलग शेप के आप देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, मटेरियल, किस मटेरियल का बनाएंगे। अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है, अलग अलग सेंसर्स होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब फ्रिज में मोबाइल वाला सेंसर नहीं लगा सकते, और मोबाइल वाला सेंसर आप फ्रिज में नहीं लगा सकते, अब मोबाइल वाला आप एसी में नहीं लगा सकते। इसलिए हमने ये पॉइंट दिया है, थर्मिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट, शेप के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, रेंज के हिसाब से वी कैन डिज़ाइन द और मैन्युफैक्चर द एनी सेंसर्स। हम यहाँ पे थर्मिस्टर की आगे बात करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छोटी डिवाइस है और कॉम्पैक्ट डिवाइस है। तो मैनेज द, जो हमारा मेन हमने हाईलाइट किया हुआ है, मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, जिसका रेजिस्टेंस हमारा क्या है 100 ओम टू 450,000 आप देख रहे हैं ओम तक हम मेज़र कर सकते हैं। रेंज देखिए आप कितनी है, किसकी रेंज, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने टेम्परेचर का नाम कहीं नहीं लिया, आई एम जस्ट सेइंग कि हम इतना वेरिएशन करके हम बना सकते हैं। तो बीट्स, ये बीट्स टाइप का शेप देख रहे हैं, नाम इसका बीट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका बीट शेप है, आगे भी डिस्कस किया था। तो फैब्रिकेट बाय अप्लाइंग द स्लरी ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये एक हमारा एक मटेरियल है, मेटल ऑक्साइड विथ ब्लेंडर्स आउट ऑन द स्पेस द प्लैटिनम एलॉय लीड वायर्स के क्यों, टेम्परेचर है तो जनरली हमारा क्या होता है, कंडक्टर्स मटेरियल से लीड बनती है। लीड मीन्स उसका वायर जो भी हम जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा सेंसर का पार्ट करेगा, हमारा मेजरिंग पार्ट ये होता है आपका, ठीक है। तो इसमें एक आपकी फीमेल होती है, एक मेल होती है, वो आगे कभी और डिस्कस करें, अभी तो हमसे बता। तो बीट थर्मिस्टर ऑफर हाई स्टेबिलिटी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड ऑपरेट हाई टेम्परेचर। जो हमारी कितना है वेरिएशन देखिए कितना कम होता है, स्मॉल 0.0 mm से 1.2 mm से 0.05, क्या रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, अभी आगे दिखाएंगे आपको, तो ये वेरी करेगा। अगर हमने जो भी हम कैलिब्रेट करेंगे 0.01 पे, अगर हमारा 0.01 पे हमारा, अगर हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है और 0.02 पे हमने अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। फिर अगेन दिस टाइप है, ये भी है, देखिए ये आपको कॉमन दिख रहा है और आप देख के भी लग रहे हैं कि दिस डिवाइसेज द प्रेसिंग, हमने बीट्स कैसे करके बनाई, प्रेस करके बनाई है। तो ये अलग अलग हमारी हैं, और फिर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वी कैन सेलेक्ट इट। अब है कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपसे अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा थर्मिस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। जैसे आपने सपोज अभी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव अ वॉशिंग मशीन, आपके पास वॉशिंग मशीन है और आप जैसे उसमें पानी डालते हैं उसमें एरर लिख के आता है। तो जनरली आपको मैनुअल्स में दिया रहता है कि ये एरर है, ये एरर है। तो आपने देखा कि मेरा थर्मिस्टर ख़राब है, तो अगर आपने पीछे खोला और थर्मिस्टर निकाला तो कैसे चेक करें। एक तो ये है कि भाई आपकी इंडिकेशन आ रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट वर्किंग। अब वर्क कर रहा है कि थर्मिस्टर ही ख़राब है कि किसी और रीज़न से, तो यू कैन चेक इट इन लैब ऑल्सो, इन डेली पर्पज़ यूज़ ऑल्सो एंड यूज इंडस्ट्री आल्सो। भाई तुरंत तो आप किसी को बुला नहीं देते हैं कि रात में ख़राब हो गया तो बैठा हुआ है कि नहीं नहीं भाई आ जाइए आ जाइए आ जाइए और आ जाइए खाली कर देगा। तो वो हम क्या करते हैं, तो हम चेक करते हैं, चाहे वो देखिए कंडीशन PTC RTC याद रखना, NDC कि थर्मिस्टर सोन जो दिया हुआ है, मल्टीमीटर हमने दिया है, मल्टीमीटर बहुत डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्या है,
आप देख रहे हैं ये थर्मिस्टर है, हम आप मान के चलिए ये बीट टाइप का है, उसको पूरा ये बीट टाइप का है, वी आर यूजिंग सोल्डिंग आयरन, ठीक है। तो अगर पीटीसी थर्मिस्टर है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। एनटीसी है, अब करते क्या है कि हमने इसको मल्टीमीटर पे लगाया, सेलेक्ट किया ओम, भाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे सेलेक्ट किया, और जब हम सोल्डिंग आयरन को उस जो हमारा सेंसर है उसके बीट पे ले जाते हैं, आप देख रहे हैं बीट पे लगाया हुआ है, तो बीट पे ले जाते हैं, जब बीट पे ले जाते हैं अगर हमारा जब भाई सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, दो ही ऑप्शन है, इफ़ इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर एनटीसी लेंगे तो डिक्रीजिंग दिखाएगा, और अगर आप पीटीसी लेंगे तो इंक्रीजिंग दिखाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि दिस थर्मिस्टर, दिस सेंसर इज़ वर्किंग और नॉट। अगर हमारा रीडिंग में डिक्रीज़ हो रहा है, रीडिंग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा कैसा है, पीटीसी है, और अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो कैसा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, टाइप्स थर्मिस्टर। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है, मेरा थर्मिस्टर इज़ नॉट वर्किंग। तो दिस इज़ द थर्मिस्टर कि कैसे आप चेक करेंगे। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है क्योंकि ये आपका स्मॉल स्केल है और आप फिजिकली चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं कि थर्मिस्टर हमारा कैसे वर्क करता है। आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट जो मेरे लेक्चर्स में हमेशा रहता है कि वी कैन फोकस एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन पार्ट। थ्योरी तो आपने पढ़ ली, रट ली, लेकिन क्यों कर रहे हैं, वाई आर डूइंग दिस वन। तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा एडवांटेज है थर्मिस्टर का, बहुत ही हमारा स्मॉल स्केल का छोटा सा डिवाइस होता है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट टेम्परेचर मेजरमेंट है, पर बहुत हाई रेंज टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हाई रेंज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप 50 डिग्री से, वी आर यूजिंग, आई कैन मेंशन हियर, यू कैन हियर द फायर अलार्म्स, रेफ्रिजरेटर्स, ओवन, बॉयलर्स, माइक्रोवेव्स, वी आर यूजिंग द एंड एसी सबसे इंपॉर्टेंट जो आप देखते होंगे, आप एयर कंडीशन में उसमें सेटिंग भी रहती है, वो अपने आप कट ऑफ करता है, सभी में है, चाहे उसमें मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं किया है, आपकी वॉशिंग मशीन नहीं मेंशन किया है, आपका एसी नहीं मेंशन किया, वी आर यूजिंग द थर्मिस्टर्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट हैं, और स्पेशली इन डोमेस्टिक, बॉयलर फॉर द स्मॉल स्केल, माइक्रोवेव भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं, बॉयलर हमारा इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, और ओवन भी हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। रेफ्रिजरेटर अलग चीज़ है, रेफ्रिजरेशन पार्ट वहाँ पे भी हमारा यूज़ होता है। तो वी कैन यूज़ द दिस वेरी डोमेस्टिक और वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द दिस थर्मिस्टर। तो एडवांटेज ऑफ थर्मिस्टर देखें, कॉस्ट बेनिफिट, बार बार कह रहे हैं कि छोटा डिवाइस है, छोटा सेंसर है हमारा, यूज़फुल सेंसर है, बहुत से और भी हैं, RTD भी है, थर्मोकपल भी है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये साइज़ एडवांटेज, कहीं पे भी छोटा सा आप लगा देंगे, बहुत बड़ा इसका साइज़ नहीं होता है, ईज़िली कस्टमाइजेबल, आप कहीं पे इसको जैसे चाहें वैसे फिक्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम बहुत होता है, जैसे ही आप भाई आपने AC ऑन किया तुरंत आपका इंडिकेटर ऑन हो जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर है। तो ये नहीं कि अभी आप रिमोट से प्रेस कर रहे हैं और आपको थोड़ी देर में, तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी फास्ट। बेनिफिट बहुत यूजर्स के लिए है, एक्यूरेसी एडवांटेज है, इन रश एडवांटेज बहुत है इसकी। इन रश आप बोलो सुन रहे हैं हाई अमाउंट ऑफ करंट, जैसे कोई चीज़ आप ऑन करते हैं, आप कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल गैजेट है डिवाइस है, तो उस समय जब इंस्टेड ऑफ ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हाई थोड़ी देर के लिए, अब नॉर्मली तो नहीं रहता है, अब नॉर्मली उसे कहेंगे कि करंट आ जाती है। उस समय हमें जो सर्किट ब्रेकर्स में भी आपका लगा रहता है कि कहीं पे भी टैप, देखिए डोमेस्टिक किसी भी बल्कि और इलेक्ट्रिकल जो हैवी ड्यूटी जो 450 या 420 के ऊपर हमारी वोल्टेजेस होती है, मेजरमेंट है या कहीं पे कुछ करना लेना भी है, तो दे आर यूजिंग दिस। तो सर्किट ब्रेकर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए वी मेंशन द इन रश का यही एडवांटेज है कि जैसे हम किसी चीज़ को ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तो वो एबनॉर्मली हमारी जो करंट होती है थोड़ी इंक्रीज़ होती है, और उस समय अगर वो हो गया तो मेरी डिवाइस क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो वी आर यूजिंग फॉर द इन रश, करंट लिमिट किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। आगे हम और भी हैं इसकी प्रोटेक्शन फॉर द ओवर हीटिंग, जैसे नाम ही करें, जितना भी कोई भी हमारा कहीं भी ओवर हीटिंग है, मतलब जस्ट लाएगा, अगर सभी ने देखा है, आप उसमें भी टेम्परेचर सेट कर देते हैं, 3 मिनट के बाद आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दो, 100 के बाद वो 101 नहीं होगा, वो 100 पे एग्जैक्ट कट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सोच लें, ये तो एक माइक्रोवेव का एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में है, आपका कहीं पे भी कोई पावर सप्लाई जा रही है
और प्रोटेक्शन अगर नहीं है कि भाई लगाते हैं आप सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, प्रोटेक्शन ही तो है वो, तो उसमें टेम्परेचर सेंसर की टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो भी वो हमारा क्या, दैट इज़ यूजिंग फॉर द प्रोटेक्शन फॉर ओवर हीटिंग। फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बताया अभी से कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सम एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़ एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पज़। अब डिसएडवांटेज कर्व आपने देखा था इसका कि लीनियर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स की लीनियर नहीं है और लिमिटेड टेम्परेचर रेंज है। भाई इस जो हमारे अभी आगे के जो हम थर्मल सेंसर्स पढ़ेंगे या टेम्परेचर सेंसर्स पढ़ेंगे, दे आर हैव अ मोर रेंजेस इन कंपैरिजन टू हमारा ये थर्मिस्टर्स। तो ये आज की डेट में बहुत ही यूज़फुल सेंसर है। सेंसर तो सारे यूज़फुल है लेकिन ये उसके लिए है। अब थर्मिस्टर देखिए, आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। थर्मोस्टेट, HVAC, सिस्टम ऑफ द मॉनिटरिंग आपका है, हीटिंग एंड वेंटिलेशन, AC सिस्टम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर एरिया में यूज़ होता है, वाटर से लेके एयर से लेके हर जगह, क्योंकि हीटिंग भी है, ऑपरेशंस भी है और AC भी है, ये हर तरह से ये आपका काम करता है। वेंटिलेशन में भी यूज़ हो जाता है, हीटिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है, एयर कंडीशन में कट ऑफ करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये हमारा HVAC में सबसे ज़्यादा हमेशा यूज़ होता है। माइक्रोवेव, अभी आपको एग्जांपल दिया, सामने बना भी हुआ है कि वी आर यूजिंग द थर्मिस्टर्स। ये आपको जो स्टेप लाइन देख रहे हैं ये आपकी थर्मिस्टर्स है। बहुत से इसके पहले आपके थर्मिस्टर्स हमारा सेलफोन में यूज़ होता है। रिचार्जेबल बैटरी, आज की डेट में हमारा पूरा एनर्जी पे बहुत जोर हो रहा है, तो वी आर यूजिंग रिचार्ज। क्यों यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पे वी आर यूजिंग द हीटिंग प्रोटेक्शन, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। आपने बैटरी लगा दी, चार्ज हो रही है, तो थर्मिस्टर लगा के हम कट ऑफ करते हैं, भाई चार्ज हो गई, अपने आप बंद हो गई। सेल फोन में भी यही है, कंटिन्यू गेट स्मॉल। हमारा देखिए साइज़ आपको इसलिए बताया था, साइज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेप्स, हमारे फ़ोन थिन होते जा रहे हैं, तो हमारा थर्मिस्टर हम पुराना वाला तो नहीं लगा सकते हैं इसमें, तो वी कैन रिड्यूस। एप्लीकेशन के हिसाब से हम थर्मिस्टर को बनाते हैं। वॉशिंग मशीन में आपने देखा लगा हुआ है सर्ज प्रोटेक्टर थर्मिस्टर्स आपके लगे हुए हैं। तो ये मतलब आप देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादातर आपका क्या है, सारा डोमेस्टिक है, तो हर घर में ये यूज़ हो रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर सेंसर फॉर लो रेंज। अब वॉशिंग मशीन में आपका कहीं अब 1000 डिग्री टेम्परेचर पे तो हम नहीं करते हैं, इसलिए हमने बार बार बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट यूजिंग फॉर द वेरी हाई रेंज। इसीलिए इंडस्ट्री में भी यूज़ है लेकिन कम है, और के कंपैरिजन में जो हमारे अदर सेंसर्स हैं उसके कंपैरिजन में हम इसको कम मेज़र करते हैं। ठीक है, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी बना रही हैं, सारे थर्मोकपल भी बनाती हैं, थर्मिस्टर भी बनाती हैं, RTD भी बनाती हैं। तो आपको इसी लेक्चर में खाली हम नाम दे रहे हैं। कैल्विन टेक्नोलॉजी है, टेम्परेचर स्पेशलिस्ट है, थर्मोलॉजिक्स है, और भी बहुत सी कंपनी है। ये स्पेशलिस्ट ले दे रहे हैं क्योंकि ये पूरी डेडिकेटेड है स्पेशली फॉर टेम्परेचर सेंसर्स, इसलिए हमने यहाँ पे आई मेंशन इज अ थर्मिस्टर मैन्युफैक्चरर। बट आपको ये RTD में भी मिल जाएंगे और थर्मोकपल में भी मिल जाएंगे। सिंबल भी बना हुआ है थर्मोकपल का, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।